السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ 4 روزہ جنگ میں بھارت کو جو زخم لگے ہیں وہ ان کو چاٹنے میں مصروف ہے۔ جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کرے۔ بھارت کا میڈیا اور بھارت کی سیاستدان جو ہیں وہ ابھی تک جنگی جنون کو ہوا دیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو دونوں ممالک کے افواج کے درمیان رابطہ ہے اس کے نتیجے میں جو ایسکلیشن ہے وہ ڈی ایسکلیشن میں بتدریج اس میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کو 3 بنیادی وجہ دکھائی دیتی ہیں جس کی وجہ سے آج جس جگہ پہ وہ کھڑا ہے اور جس سفارتی تنہائی کا اس کو سامنا ہے وہ درپیش ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت جو ہے ایک مذہبی جنونی ریاست کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ ہندوتوا کے فلسفے، نریندر مودی کے ریاستی دہشت گرد ہونے کے حوالے سے اور جس طریقے سے کینیڈا اور امریکہ میں سکھوں کے خلاف خفیہ آپریشن کیے گئے اور ان کو مارا گیا یا مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی جس طریقے سے حملے کروائے گئے اور لوگوں کو جو ہے وہ مارا گیا، اس نے بھارت کا چہرہ جو ہے وہ مسخ کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ جہاں پہ وہ یہ اس خام خیالی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ علاقائی نہیں بلکہ گلوبل پار ہے اور وہ دنیا میں اسی طریقے سے چلے گا جس طریقے سے امریکہ چلتا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں ان کے گردن میں سریا کس حد تک جا چکا تھا اس کی تصویر بھی سامنے آتی ہے جب وہ یورپی ممالک سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پریچرز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پارٹنرز کی ضرورت ہے، ہمیں یہ بات بتاؤ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ یہ جو ایک اکڑ تھی اور یہ جو سلسلہ تھا اس نے ان کے ایک عالمی تشخص جو ہے اس کو بھی بے پناہ برے طریقے سے جو ہے وہ متاثر کیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ خام خیالی کہ وہ اس قدر قوت بن چکے ہیں کہ چین بھی جو ہے وہ ان کے سامنے ایک بڑی معمولی حیثیت رکھتا ہے اور بس یہی کوئی 8-10 میزائل وہ ماریں گے اور چین جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گا۔ ان سارے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہوئے جب پاکستان کا 4 روزہ جنگ میں سامنا کرنا پڑا اور اب ذہنی ہیجان ذہنی خلجان میں بدل چکا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب کیا کریں۔ اب پاکستان اور انڈیا کے مابین ایک سفارتی جنگ بھی شروع ہونے جا رہی ہے اور ظاہر ہے انڈیا نے 60 ٹیمیں جو ہیں وہ بنائی ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کریں گی۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ان اہم ممالک میں جائے گی اور بات کرے گی کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈی ایسکلیشن کے بعد جو ہے وہ بات چیت ممکن ہے۔ بھارت جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ پانی پر بات ہوگی، اگر بات ہوگی تو دہشت گردی پر بات ہوگی جو پاکستان بھارت میں کروا رہا ہے، اور جو آزاد کشمیر ہے اس کے اوپر یہ ایک نان سٹارٹر ہے۔ پاکستان یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کی معطلی ختم کی جائے، مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے انٹرنیشنلائز کر دیا ہے اور اس پر جو ہے وہ بات چیت کی جائے، اور بھارت جو ہے وہ پاکستان میں اپنی پروکسیز کے ذریعے جو دہشت گردی کر رہا ہے اور جس کے نتیجے میں پاکستان کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ اب تو بھارت نے نیا کام کیا ہے کہ افغانستان کے اندر سے افغان طالبان کے سابق ترجمان جو ہیں احسان اللہ احسان ان کو بھی آن بورڈ کر لیا ہے، اور وہ اب بھارت کے اخبارات میں بھارت کی طرف سے جو ایسے اخبار ہیں جن کو را فنڈنگ کرتی ہے وہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کروانا چاہتا ہے۔ یہ جو ایک صورتحال ہے اس میں آگے کیسے بڑھیں گے اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ایک سفارتکاری کا بڑا نام، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ رہے اعزاز چودھری صاحب۔ اعزاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو ذرا اس چیز کو دیکھیں کہ جس طریقے سے سیز فائر کے اعلان سے لے کر اب تک امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ سامنے آیا ہے
वीज़ावी भारत, और पहले ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिसके इलेक्शन जितवाने के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका जाया करते थे। ये जो तब्दीली आई है, आप इस क्या वजह समझते हैं कि ये क्या ये है जिसकी बुनियाद पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब एक गैर जानिबदाराना रवैया अपनाए हुए हैं और पाकिस्तान और भारत को उन्होंने हाइफनेट कर लिया? शुक्रिया नदीम साहब। मेरी अपनी जो अंदाज़ा है मेरा, उसके मुताबिक अमेरिका ने शुरू में तो भारत को खुला हाथ लिया था कि आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। अगर आपको याद हो तो वो कहते थे हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। गोया वो हिंदुस्तान को पूरी तरह से इजाज़त दे रहे थे कि ये जो तुम इतना ज़्यादा जोम है तुम्हारा, चलो करके दिखाओ। और जब वो नहीं हो सका तो फिर हिंदुस्तान ने अमेरिका से कहा कि आप खुदारा रुकवाइए क्योंकि मामला बहुत बिगड़ गए हैं। तो जब उन्होंने हिंदुस्तान का ये रवैया देखा कि एक तरफ तो इतनी भड़कबाजी और दूसरी तरफ जैसे ही वो कोई जवाब आया तो वो हमारे पास आने लग गए, तो अमेरिका को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये वो घोड़ा नहीं है जिसको वो तैयार कर रहे थे चीन के खिलाफ। ये तो पाकिस्तान से भी नहीं निपट सकता, तो इसको फिलहाल उनको बचाया जाए, वो उसको रेस्क्यू कर रहे थे उसको। और उसमें उन्होंने ये पोजीशन ली कि एक न्यूट्रल जगह पे भी बातचीत की जाए। और डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ तक चले गए कि कश्मीर का मसला भी हल किया जा सकता है। उस पे हिंदुस्तान को एकदम से होश आया कि ये तो मामला हमारे हाथ से निकल गए हैं, ना सिर्फ मिलिटरीली हमारे हाथ से निकले अस्करी तौर पर, बल्कि सफारती महाज में भी बड़ी हमें शिकस्त हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो किसी और ही रास्ते पे चल रहे थे। कितने सालों से हिंदुस्तान ने एक पोजीशन ली हुई थी कि हमें कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने ये पोजीशन भी रखी थी कि पाकिस्तान से हमने कोई बातचीत नहीं कर। तो अब ये दोनों चीज़ें जो है जिनका वो कह रहे थे वो उनके सामने आन पड़ी, और उसका महवर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। वो सारे बीच में वो डोनाल्ड ट्रंप जिनको यानी अपनी तरफ राग़ब करने के लिए जनाब मोदी साहब ने क्या क्या नहीं किया, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है वहाँ पे। और उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम अगर इनकार करते हैं जो उन्होंने किया तो अमेरिका इसको किस नज़र से देखेगा और ताल्लुकात में थोड़ी बहुत तनाव भी आ सकता है। तो ये हिंदुस्तान के लिए मेरे ख्याल में दोहरी एक किस्म की शिकस्त थी। एक तरफ तो जो उनकी अस्करी मैदान में मुश्किलात उनके लिए पैदा हुई, और दूसरी तरफ से फारसी मैदान में। इसीलिए अब उन्होंने ये सोचा है कि अपने मफूद भेजे जाए, क्योंकि उनकी दाल बाहर की दुनिया में गलती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जब ये जंग का एक माहौल पैदा हुआ है तो और भारत जो है उसने पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम वाक़े के में का मलबा जो है गिराने की कोशिश की है, दुनिया के ममालिक ने उस बयानिए को तस्लीम नहीं किया था, और ऐसे महसूस हो रहा था कि दुनिया जो है उनकी जो कुछ वो कह रहे हैं उसको वो कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है, और सबूत का तकाजा जो है वो कर रहे हैं कि अब हमें सबूत फराहम कीजिए कि वो क्या हैं। ये जो भारत का हिंदुत्व पॉलिसी और जो ये कनाडा से लेकर सारी दुनिया में जो कुछ वो करते फिर रहे हैं, और फिर जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा तक की रिपोर्ट्स वहाँ पे जो अक़लियतें हैं उनके सारे जो रवैया है, क्या आप समझते हैं कि ये पस मंज़र भी था कि ये ख़ुद इनका जो रिकॉर्ड है वो इतना धुंधला चुका है कि इनकी किसी बात को वज़न नहीं दिया जा सकता? जी, बड़ी हद तक ये बात आपकी दुरुस्त है कि हाल ही में हिंदुस्तान के ऊपर पे दर पे इल्ज़ामात लगे। कनाडा ने शुरू किया, फिर अमेरिका ने लगाया, और पाकिस्तान ने भी बड़ा ज़ोरदार बयान दिया कि जनाब हमने शवाहिद जमा कर लिए हैं कि इतने लोग पाकिस्तान में मारे हैं इन्होंने आके। बल्कि उनके नाम भी जो थे लोग जो इन्वॉल्व थे वो भी दिए मुकम्मल, यानी शवाहिद के साथ ये जब बात की तो हिंदुस्तान के लिए ये मुश्किल पैदा हो गई। साथ ही साथ पाकिस्तान बार बार ये भी कह रहा था कि बलूचिस्तान में जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी करा रहा है उसके भी शवाहिद बहुत ज़्यादा हमारे पास जमा होते जा रहे हैं।
तो एक दबाव तो एक किस्म का पड़ता है, क्योंकि दूसरी दुनिया तो ये सोचती है ना कि अगर हिंदुस्तान ये काम कर रहा है, ये जो कुछ पाकिस्तान कह रहा है, तो चलें इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और पहलगाम की भी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। तो पाकिस्तान तो तैयार है इन्वेस्टिगेशन, दोनों इन्वेस्टिगेशन भले कर लें आप, लेकिन उन्होंने तो हिंदुस्तान ने बिल्कुल इनकार कर दिया। और आज कितने दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए हैं, कोई किसी किस्म का सबूत जब नहीं आए हैं, और पाकिस्तान अभी भी कह रहा है कि आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर लें क्योंकि आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो दुनिया में भी अब ये इस बात का मेरे ख्याल में ये सही कह रहे हैं आपके, ये तासुर उभरा है कि हिंदुस्तान क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रहा और क्यों सबूत नहीं दे रहा। तो उससे वो शक गहरे हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल हिंदुस्तान का जो बयानिया है वो बहुत कमज़ोर पड़ गया। अच्छा, अब ये 2-3 सवाल फिर ज़रा आगे की तरफ भी बढ़ेंगे। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर भारतीय मीडिया जो है वो तो बिलबिला रहा है, उसका बिलबिलाना बनता है। पूरी दुनिया के अंदर वो बेनकाब हुआ है, उसकी जो साख है वो ज़मीन बोस हो गई है और दुनिया का मीडिया जो है इस बारे में लिख भी रहा है और कह भी रहा है। दूसरी जानिब जो उनके सियासतदान हैं वो उसी तरह धमकियां भी दे रहे हैं, वो उसी तरह बड़बोलापन का इजहार भी कर रहे हैं। तो लेकिन जो मिलिट्री टू मिलिट्री सतह है उसके अंदर अब ऐसे लगता है कि एक तरीक़ाकार तय पाया है इस सारी एक्सरसाइज के दौरान जो जंग के दिनों में हुई कि डी एस्केलेशन कैसे होनी है, फिर उसके बाद आगे मुज़ाकरात की तरफ कैसे बढ़ना है। तो ऐसे लगता है कि वो तो उस तरफ जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है इसमें आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त ज़हनी झुंझलाहट है भारतीय लीडरशिप की और जो मीडिया की बिलबिलाहट है, पाकिस्तान को किसी मुहिम जोई की तवक्को रखनी चाहिए या हो सकती है? जी, पहले तो ये देखें कि मीडिया का आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुस्तानी मीडिया ने अपनी जो सारी की सारी साख है वो बर्बाद करके रख दी। और अब तो मैं कल वो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि इतनी फॉल्सहुड वो कह रहे थे, यानी बहुत ही मनफी किस्म के अंदाज में और झूठ को फैलाया उन्होंने। और उनका जो बड़े बड़े दावे थे, जी हमने तो इस्लामाबाद और लाहौर और कराची की बंदरगाह तबाह कर दी है, कब्जा कर लिया है, वो सब का सब जब झूठ साबित हुआ तो पूरी दुनिया को महसूस हुआ कि यार ये मीडिया तो इन्हीं से लेता है इस सारी गाइडेंस गवर्नमेंट से। तो अब इन दोनों की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है? इस वजह से झुंझलाहट तो है, आपने सही कहा। अब क्या उस झुंझलाहट में कोई और वो काम किस्म का कर सकते हैं, कोई और मिस एडवेंचर कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में इमीडिएटली नहीं करेंगे, मेरी अपनी राय है। उसकी वजह यह है कि ये अब पता चल गया है कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ा जवाब आता है और खरा जवाब आता है। इस वजह से अब वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं करेंगे मेरे ख्याल में। अब वो थोड़ा इंतजार करेंगे, उनकी एयरफोर्स वैसे ही बैठ गई हुई है, कुछ और अपना वो देखेंगे और उसके बाद कोई मौका पा के कोई वार कर सकते हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी मैं नहीं होता देख रहा। अगर उनका बैनुल अक़वामी बरादरी ने उनका बयानिया कबूल ना किया, जो लग रहा है अभी तक वो भेजेंगे थे टीमें, देखते हैं कितना कबूल करती है, अगर वो कबूल ना किया और तो हिंदुस्तान ये शायद हिम्मत ना करे। और पाकिस्तान ने भी अगर अपनी तैयारी जारी रखी, जिस तरह अक्सर हमें सजेस्ट किया जा रहा है कि अभी अपने गार्ड लोअर ना करें, तो भी हिंदुस्तान शायद ये एडवेंचर ना करे। लेकिन जब बिहार के इलेक्शंस बिल्कुल सर पर होंगे या कोई और इस तरह का होगा, तो माजी में तो कम से कम हमने यही देखा कि ये लोग ये करते आए। इन्होंने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन करके, आपको याद है पुलवामा में भी 2019 में इलेक्शंस उन्होंने जीता इसी बल पे, बहुत बड़ा इलेक्शन जीता उन्होंने। तो इसलिए उस वक्त कोई रूल आउट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को बहरहाल तैयार रहना पड़ेगा। ये कोई काबिल भरोसा हमारा हमसाया नहीं है बदकिस्मती से, और पाकिस्तान को इसीलिए बैनुल अक़वामी बरादरी में भी अपना बयानिया देना चाहिए, जो हमारी टीम्स अब जा रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का बयानिया वहाँ पे सिर्फ नहीं चलना चाहिए, बहुत सारे ऐसे नुकात है जो हमें भी उठाने चाहिए। वो मेरा ख्याल है हमारे वफूद भी जाके उठाएंगे। नाज़रीन, साबिक़ सेक्रेटरी खारजा एजाज़ चौधरी से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन।
ہماری آج کی مہمان شخصیت پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اچھا، اب اعزاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک یہ نیا نیکسس جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے طالبان اور بھارت کے درمیان۔ ایک جانب جو ہے یہ کہتے ہیں جی کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، دوسری جانب الحاق جو ہے وہ دہشت گردوں سے جا کے کر رہے ہیں، اور اب احسان اللہ احسان جو ہے وہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں۔ یہ مطلب یہ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں؟ طالبان تو وہ ہیں جو خود بھی ڈوبے ہیں اور ان کو بھی لے ڈوبیں گے۔ طالبان بڑے ہی افغانستان کی بدقسمتی ہے کہ طالبان وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے، اور ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شکست دے دی پہلے سوویت یونین کو، پھر ان کو شکست دے دی امریکہ کو۔ ایسا نہیں ہے، سوویت یونین بھی اپنی مرضی سے خود گیا تھا اور امریکہ بھی اپنی مرضی سے گیا تھا، وہاں پبلک اوپینین تھا، انہوں نے کوئی کسی کو شکست نہیں دی تھی۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ اتنے تگڑے ہو گئے ہیں کہ یہ پاکستان سے بھی بندوق اٹھائیں گے اور دہشت گردی کریں گے اور سب کچھ منوا لیں گے۔ ایسا ہوگا نہیں، بہت ہی ان کی یہ کوہتا بینی ہوگی۔ پاکستان اور چین دونوں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اس راستے پر نہ چلیں، دنیا میں آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اور اگر طالبان ہندوستان کے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو ہندوستان جو طالبان کو ایک زمانے میں بہت ہی تنقید کرتا تھا جن پر، آج وہ اگر ان کا دوست بنتا ہے تو جس طرح طالبان دنیا میں تنہا ہوئے ہیں، ہندوستان بھی تنہا ہو جائے گا۔ تو یہ بھارت کو بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنا نزدیک ہونا چاہتے ہیں ان کے، اور طالبان کو اس سے بھی زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان ہمسایہ ہیں۔ پاکستان سی بندرگاہوں سے 7 دہائیوں سے انہوں نے اپنی معیشت کو سہارا دیا ہے۔ پاکستان سے تجارتی سامان ان کے پاس ضرورت کا جاتا ہے۔ پاکستان نے تو ان کے ساتھ اتنی سہولت بھی کی کہ یعنی جو ٹرانزٹ ٹریڈ تھی ون وے، وہ بھی اجازت دی کہ افغانستان کی جا سکتی ہے ادھر۔ تو ہم نے تو اتنی ان کے ساتھ مہربانی ہے کہ اتنے ملین ریفیوجیز یہاں پہ رہے۔ اگر اس قسم کا یہ کام کریں گے تو یہ صرف اور صرف اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے، اپنے ملک کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو میں تو یہی ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس راستے پہ نہ چلیں، یہ آپ کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے اور خطے میں امن کے لیے بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے اعزاز چودھری صاحب کے، ابھی جنگ بھی تھی، اس کے باوجود اٹاری بارڈر سے ان کے جو ٹرکس ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ کے، ان کو نکالا گیا ہے۔ کیا یہ بنتا تھا کہ ان کو نکالا جانا چاہیے تھا؟ وہ چلے کچھ انڈیویجول افغان تاجر ہوں گے، ان کا سامان شاید خراب ہو رہا ہوگا، تو پاکستان نے ہمیشہ ہی دل بڑا کیا ہے۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، ہم نے دل بڑا ہی رکھا ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارے گڈ ول جیسچرز کو نہیں دیکھتے۔ گڈ ول جیسچرز ایکچولی میں نے دیکھا ہے انٹر اسٹیٹ ریلیشن میں زیادہ کام آتے نہیں ہیں۔ تو افغانستان کو ہم نے جو اتنی رو رائے دی، اتنا کچھ کیا، پیسے خرچ کیے، ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری معیشت کے اوپر بوجھ تھا، سارا کچھ تھا، اسمگلنگ ہوتی تھی ایک زمانے میں، جو ٹرانزٹ گڈ جاتا تھا وہ واپس آ جاتا تھا، ہماری معیشت کو بہت نقصان پہنچتا تھا۔ ہم نے ہمیشہ بڑا دل کیا۔ اب ہمیں ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے جو باہمی مفادات کی بنیاد، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا جو اس وقت وفد ہے محمد صادق صاحب اور چین کا جو وفد ہے، ان کو یہی باتیں سمجھا رہا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ لیکن بہرحال وہ جو ایک رائے دی تھی کہ چلے بارڈر سے پار چلے جائیں، میرے خیال میں کوئی حرج نہیں، وہ چلا گیا، ایک جسچر کر لیا۔ لیکن آئندہ کے لیے اب ہم یہ کام نہ کریں، کیونکہ یہ وہ زبان سمجھتے نہیں ہے پیار کی اور کوئی۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے اس طرف آنا ہے کیونکہ یہ بھی ایک ایکٹیویٹی جو ہے چل رہی ہے، 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو سیز فائر ہوا ہے، جس طریقے سے اناؤنس ہوا ہے اور جس طریقے سے تجارت اور مذاکرات کی بات کی گئی ہے، اس سے کچھ ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک روڈ میپ ضرور طے ہوا ہے۔ جب جے ڈی وینس جو ہیں وہ نریندر مودی سے بات کر رہے تھے، مارکو روبیو جے شنکر سے، ادھر اسحاق ڈار صاحب سے بات کر رہے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پاکستان اور بھارت کے مابین مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو اناؤنسمنٹ آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ غیر جانب مطلب کسی تیسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ مجھے فوری طور پر تو ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ندیم صاحب۔ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان بہت لہت و لال کرے گا۔ دیکھیں، ایک
उनकी सारी की सारी पुराना जो उनका स्टैंड था, पुरानी जो इज्जत थी, साख थी, सब दाव पे लग गया। तो अभी शुरू में तो नहीं करेंगे वो, लेकिन हो सकता है अगर बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ता रहे और इनके सारे वफूद जो 7 टीमें जा रही हैं वो फेल होके आ जाएं, तो फिर मजबूर होकर शायद इनको ये करना पड़े। मुझे कोई ऐसा रोड मैप नजर नहीं आ रहा है, अगर बना हुआ है तो उसके कोई साइंस नजर नहीं आ रहे हैं, कोई इंडिकेशंस नजर नहीं आ रही हैं। तो हिंदुस्तान शुरू में तो लैतोलाल करेगा भी काफी देर, और फिर देखेगा कि अगर उसके पास कोई चारा नहीं रहा तो फिर वो शायद बातचीत। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो अमरीकी सदर की जो एक नाराज़गी है वो उसको मोल लेगा? क्योंकि सागदार साहब ने भी इस पे इशारा किया कि आगे मामला बातचीत की तरफ होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ये दोनों बातचीत करेंगे, तो वो चीज़ें तो इस तरफ तो दिखाई दे रही हैं। और जब उधर से कोई तिल मिलाता हुआ बयान आता है कि नहीं जी हम तो बात करेंगे ये आज़ाद कश्मीर पे या दहशत गर्दी पे। देखिए, वो तो अब जो उनकी अपना कहना है उनको कहना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक शिकंजे में कस दिया है। अब उनको समझ नहीं आ रही कि निकलें कैसे। ये बात आपकी सही है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहे को वो कैसे इतनी आसानी से टालेंगे। वो इसी तरह टालेंगे कि उनको ये कहेंगे कि जनाब हम बातचीत उनके साथ डायरेक्टली करना चाहते हैं, और वो जब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा हट जाएगा तो ये बातचीत नहीं करेंगे। ये मैंने पुराने देखा इनका कि दुनिया को ये कहते हैं कि हम कश्मीर के मसले के ऊपर पाकिस्तान और भारत करेंगे दो तरफा बुनियादों पर, और दो तरफा बुनियादों पर करते नहीं। इवन जब पीस प्रोसेस चल रहा था तब भी सही तरह बात नहीं करते। तो इस वजह से ये उनका आप एतबार ना करें, वो डोनाल्ड ट्रंप को डिफ्लेक्ट करने के लिए यही बात करेंगे कि जी हम बातचीत करने जा रहे हैं, फिर करेंगे कोई। तो मैं तो कम से कम उसका इस बात का एतबार नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी शुरू होगा। अगर शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम तो बड़े अरसे से यही कह रहे हैं, लेकिन इस उसमें दुनिया में नहीं, खाती दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अगर वो करना चाहते हैं तो जरूर आए ना, पाकिस्तान तो तैयार बैठा, इंतजार किस बात का कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो वो लैतोलाल से काम लेते नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है एजाज़ चौधरी साहब कि जब हम इस सारी सूरत हाल का देखते हैं कि जो अब तक रूनुमा हुई है, तो अब एकदम उन्होंने जो है ये फ़ैसला किया कि जी हम दीगर ममालिक में अपनी टीमें भिजवाएंगे, जो भारत का मुकदमा जो है वो लेकर जाएंगी। ये एकदम ऐसे लगता है कि नी जर्क रिएक्शन है। अब पाकिस्तान जो है उसने भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में एक टीम जो है तश्कील दी है। पाकिस्तान के पास भारत की पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बेपनाह शवाहिद मौजूद हैं। कुलभूषण यादव से लेकर अब तक जो कुछ होता रहा है उसके हवाले से आपको लगता है कि जब ये एक डॉक्यूमेंटेड डोजियर फॉर्म के अंदर पाकिस्तान की ये टीमें लेकर जा रही हैं, और जब ये अपना मुकदमा पेश करेंगे और ठोस सबूत और शवाहिद के साथ पेश करेंगे तो काउंटर होगा भारत का जो एफर्ट है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, और करना भी चाहिए। हिंदुस्तान की जो टीम है इस दफ़ा वो बैकफुट पे है, ये याद रखिए। वो यही करेंगे कि जी वो माजी में देखें जी ये हुआ, जी मुंबई हुआ, जी ये हुआ, वो वही है उनका। हमें इस दफ़ा 3 एजेंडा आइटम रखने होंगे हमारी टीम को। दहशतगर्दी की बात करनी होगी, कश्मीर की बात करनी होगी, और पानी की बात करनी होगी, तीनों चीज़ें। लेकिन जो दहशतगर्दी वाला मामला है उस पर हमें बताना होगा वो चीज़ें जो दुनिया को अभी पूरी तरह नहीं इल्म है। मिसाल के तौर पर कि जो हमारे पास शवाहिद हैं जिनके हम बनाएंगे, डोजियर्स बनाएंगे, वो चीज़ें बताएंगे। और साथ ही साथ में हिंदुस्तान का ये जो दावा है कि जी पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बड़े मराकज़ हैं, तो वे चले जाके देख लें, मुरीद के को देख लें, वहाँ पे जाके विजिट करके देख लें वहाँ पे क्या है। वहाँ पे मेरी जो मालूमात है वहाँ पे अब इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे मस्जिद है, मदरसे हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें भी हमें इसके भी सबूत लेकर जाना चाहिए कि जो जो हमने काम किया था जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आई थी और जब 1373 मॉनिटरिंग टीम आई थी, तो हमने जो जो काम कर लिया है उसका भी सबूत लेकर जाएं, ताकि दुनिया के पास हमारा बड़ा जोरदार, ये खाली अच्छी अंग्रेजी बोलने की बात नहीं है। ये बात ये है कि आपको यहाँ से अच्छी तरीके से काम करके, मेहनत करके, डोजियर्स बना के, मालूमात इकट्ठी करके, इन तीनों एजेंडा आइटम्स पे जिसका मैंने जिक्र किया, दहशत गर्दी का, कश्मीर का, पानी का
ये तीनों चीज़ों पे हमें डोजेज जाके वहाँ पे बात करनी चाहिए। लेकिन इसमें आपको याद होगा एजाज चौधरी साहब के जो अफजल गुरु वाला मामला था, उसमें भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई शवाहिद कोई नहीं है, लेकिन रियासत का कौमी सलामती का मामला है तो चढ़ा दो फांसी। ये तो इनकी अपनी हालत है। जी जी, इस किस्म के बहुत सारे और वाकयात हैं। छत्तीस सिंहपुरा का भी है, समझौता एक्सप्रेस का भी है, इवन पठानकोट के ऊपर भी है। बहुत सारों पे लोकल एलिमेंट्स निकल आए और बाद में इनको यानी ये जो इल्ज़ाम था उससे हटना पड़ा कि पाकिस्तान ने किया। तो ये तो इनका पुराना है, लेकिन आप जब तक सबूत नहीं देंगे लोगों के पास जाके, ये सारा कुछ नहीं बताएंगे कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ क्या क्या काम हमने कर लिया हुआ है। अलकायदा वगैरह के अलावा भी जो जो काम पाकिस्तान के अंदर जो लश्कर बश्कर थे सारे के सारे जो है ना वो आप हमने वाइंड अप कर दिए हुए हैं, क्योंकि वो एक जमाने से पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हुए थे और पाकिस्तान ने उनके खिलाफ फाइट की है, उनको खत्म किया। तो ये सारी बातें उनको बताने की जरूरत है, क्योंकि अब माजी के हवाले देकर हिंदुस्तान का मुकदमा जो है वो आगे नहीं चलना चाहिए। हमें भी माजी के हवालों से पूरे डोजेज बना के दे जाने चाहिए उनके पास कि वो क्या क्या करते हैं। नाज़रीन, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज चौधरी से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बैक। नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान शख्सियत साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज चौधरी, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। अच्छा एजाज चौधरी साहब, अब आते हैं ज़रा ये जो सूरत हाल अब डेवलप हो रही है, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो हैं वो आज चाइना गए हैं। एक तो बायलैटरल टॉक्स हैं, कितनी अहमियत की हामिल हैं। दूसरा, अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी वो भी पहुँच रहे हैं चाइना। फिर ट्राइलैटरल टॉक्स हैं। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि इससे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर भी ट्राइलैटरल टॉक्स जो है वो ज़रा निचली सतह के ऊपर हुई हैं? जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो पाकिस्तान का चीन के साथ जो दोस्ती है पाकिस्तान की, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। हमने देख लिया, जब कड़ा वक्त आया तो चीन हमारे साथ खड़ा था और हमें चीन के साथ कोई जो पहले थोड़ी बहुत एक ज़माने में कुछ मिसगिविंग्स सी कर दी गई थी, उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स आ गए थे हमारे, उनके लोगों को लोग आके बाहर के लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के थ्रू मरवाते थे, वो सारी बातें जो है ना उन्होंने पसे पुश डाल के पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया। तो हमें भी चाहिए कि हम उनके साथ अपनी दोस्ती का अयादा करें और पूरी तरह उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की इलाकाई इस्तेहकाम की पूरी तरह हमायत की है। दूसरा है अफगानिस्तान, वो जो ट्राइलेटरल हुई है, तो उस ट्राइलेटरल के जो नीचे वाली डिस्कशंस हुई हैं उसमें भी तो यही तालिबान को समझाने की कोशिश की है कि अगर आप एक नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव करना चाहते हैं तो जो आपसे तवक्कुआत थी वो तवक्कुआत पूरी करें। आप क्यों दहशत गर्दों को अपने यहाँ जगह देते जा रहे हैं? टीटीपी है, हमें समझ आती है इस बात की कि टीटीपी को अगर ये ज्यादा करेंगे तो वो ISKP जो है इस्लामिक स्टेट फॉर खुरासान प्रोविंस के साथ ज्वाइन कर देंगे। मुझे हमें समझ आती है कि ये इस तरह के उनके मसाइल हैं, लेकिन ये अगर हमारे साथ ताउन करें तो टीटीपी कुछ भी नहीं कर सकती है। ये इनको समझ नहीं आ रही है। ये समझ रहे हैं शायद टीटीपी, उससे फिर दूसरों को भी शक पड़ता है, यानी चीन को भी शक पड़ता है कि कल आपको इस्लामिक क्या वो जो ईस्ट तुर्किस्तान की जो मूवमेंट है वो कर देंगे। फिर उज़्बेकिस्तान वालों को भी फिक्र है, ताजिकिस्तान वालों को भी फिक्र है। सबको ये इस बात का है कि भाई ये तो अगर यहाँ पे दहशतगर्दी की पूरी आमाजगा बन गई तो ये पूरे खित्ते में आग लगा देंगे। ये तालिबान कर क्या रहे हैं? इसलिए ये बात उनको समझानी जरूरी है और चीन से बेहतर कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि चीन से वो अब सरमायाकारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीन आए, कुछ मिनरल्स में सरमायाकारी करे, कुछ उनके पास पैसे आए। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये अच्छा दौरा है। इसके मुझे यकीन है कि बेहतर नताइज निकलेंगे और तालिबान को भी थोड़ी सी इस मामले में समझाने की जरूरत है। हमें उनके साथ डिप्लोमेटिक बाइकआउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें हिंदुस्तान वाली रविश इख्तियार नहीं करनी चाहिए, हमें उनके साथ मुकम्मल रवाबत रखनी चाहिए, हर सतह पे जाके मिलना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। अच्छा, इसमें एजाज चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि ये चूँकि दौरा जो है पाक भारत हालिया जंग के फ़ौरन बाद जो है वो हो रहा है और इसहाक़ डार साहब गए हैं, ये एक आला सतही कॉन्टैक्ट है, आपको क्या लगता है कि इसमें मुस्तक़बिल के हवाले से जो मुआशी सतह पर ताउन है और जो फ़ौजी सतह पर ताउन है उस हवाले से भी बातचीत होगी और सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा?
क्यों नहीं, क्यों नहीं, बहुत ज़रूरी है। चीन वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान में उस वक्त सरमायाकारी की जब यहाँ हम दहशतगर्दी की जंग में लपेट में थे बाकायदा पूरा। तो इस वजह से अगर चीन दोबारा पूरी तरह लेकर आता है सरमायाकारी पाकिस्तान में, सिर्फ ये कि हमें नेगोशिएट अच्छा करना चाहिए। हम लोग अमूमन नेगोशिएशंस में कमज़ोर रहते हैं। अदरवाइज चीन को पूरी गाइडेंस है उनके प्रेसिडेंट से। वो तो आयरन ब्रदर कहते हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के अंदर जाके सरमायाकारी करनी है। वो हमारा एक हमदर्द दोस्त है। हमें अच्छी तरह नेगोशिएट करनी चाहिए चीज़ें अपनी, ताकि वो उस किस्म का मसला ना हो जिस तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1 में हो गया था 2006 का, उस तरह का ना हो। लेकिन अगर चीन आपके साथ बिल्कुल ताउन करेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे एरियाज हैं, मिनरल्स हैं खुसूसन, उसके अंदर आजकल बाहर से सरमायाकारी की बात हो रही है। चीन को भी आना चाहिए। हमारे जो जोन हैं उसमें चाइना का इंडस्ट्री भी आनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर चीन जो है वो के साथ ये बातचीत की जाए सारी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे, चूँकि आपका इतना तवील तजर्बा और पाकिस्तान के आप बड़े ज़बरदस्त सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, ये जो जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम ये टेररिस्ट जगहों पे अटैक कर रहे हैं, मिलिट्री को इन्वॉल्व नहीं है, और जिस तरीके से मोदी साहब ने कहा है, आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या कहना वो चाह रहे हैं? वो मेरे ख्याल में इस बात की खफगी मिटा रहे हैं कि हमने सिविलियन इलाकों पर हमला किया और लोग मारे और मस्जिदें शहीद की। उसकी खफगी मिटा रहे हैं कि हमने तो पहले से बता दिया था ताकि वो लोग मारे। लेकिन हमारे पास मेरे ख्याल इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी पहले से। हमने बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजों, उसमें वो हटा दिए थे। लेकिन उनके अपने अंदर मुल्क में उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है उनके इस बयान पे। वो कहते हैं ये किस किस्म की जंग लड़ रहे हैं जिसमें वो पहले बता देते हैं और फिर ये तवक्को करते हैं कि वो हम पे कोई हमला भी ना करें। यानी वो मोदी साहब का बयान कि पाकिस्तान ने तो हम पे हमला कर दिया। भाई आप हमला कर रहे हैं और जवाब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमला ना करे, और आप पहले से बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये उसी खफगी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने किसी सिविलियन पे कोई अटैक नहीं, हमने सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे किया और वहीं से किया जहां से अटैक हम पे आए। तो इस वजह से उनको काफ़ी इस बात में मेरे ख्याल में दुनिया से का सामने है। तो उन्होंने सोचा कि ये बयान देने से शायद ये खिफत थोड़ी कम। अच्छा, ये जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का दौरा था पाकिस्तान का, कहा जा रहा है वो जाएंगे भारत भी, आप क्या समझ रहे हैं कि ये अब टास्क जो है ये बरतानिया के पास है कि सूरत हाल जो है उसको कैसे आगे लेकर चलना है, या मुज़ाकरात तक लेकर जाना है, या क्या इस दौरे को कैसे आप देख रहे हैं? अमूमन तो यूनाइटेड किंगडम अमेरिका के साथ मिलकर काम करता है इस किस्म के, क्योंकि अब अमेरिका ने ये कहा है कि हम को बीच बचाव कराना चाहते हैं। जंग बंदी तो हो गई लेकिन कोई सुलह सफाई कराना चाहते हैं, कोई बातचीत शुरू कराना चाहते हैं। तो यूके का भी मकसद अब यही होगा उनके जो विजिट का, जिस तरह यहाँ हमारे यहाँ भी फॉरेन सेक्रेटरी लेमी आए, फिर वहाँ पे भी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो यही बात जाके उनसे कहेंगे कि आपका ये जो रवैया है ये सही नहीं है, आपको बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए, वरना फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को आना पड़ता है। और आप थर्ड पार्टी मीडिएशन भी नहीं चाहते हैं, बायलैटरली भी नहीं कर रहे हैं, आपने बातचीत भी नहीं की हुई। तो अब इस दफ़ा हिंदुस्तान पे दबाव है जी, लेकिन लीड जो है इस मामले में अमेरिका की रहेगी और यूके उनके साथ हम आहंग होकर हम कदम होकर चलेगा। एक जल्दी से मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा कि ये जो भारत जो है इसने जो सींग फंसा लिए हैं ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, ये जो रिएक्शन है इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये अपने ताल्लुकात ही ममालिक के साथ ख़राब करना शुरू हो गए? इनको बहुत नुकसान होगा इसका। ये तो आपको याद है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे थे, ईरान की पोर्ट से ऊपर ले जाके सेंट्रल एशियन स्टेट से जाना चाह रहे थे ये लोग। ये तो सारा का सारा मामला ही ख़राब कर रहे हैं अपने लिए। और जो बदतमीजी इनके मीडिया पे किया, एक हमसाया मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर वो दायरे लगा के किसी जानवर का नाम ले रहा है, ये कोई तहजीब वाली बात है? और उनको नेशनल हुकम पे आप चलने देते हैं, और उनका मीडिया अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि जो उसको जाके जर्नलिस्ट को ब्लैकलिस्ट करेगा। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? एक मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उसके फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर आप लाल पेन से दायरे लगा के बदतमीजी कर रहे हो।
تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کے ہاں میرے خیال میں ساری جو کہتے تو ہیں کہ ہم بڑی تہذیب کے دل کے گہوارہ ہیں، تو کس قسم کی تہذیب کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اب ایک اور چھوٹا سا سوال، وزیر اعظم شہباز شریف ایران جا رہے ہیں کہ کیا اس تناظر میں اس دورے کی کتنی اہمیت ہے؟ یہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے آپ کا، پاکستان کو ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہنے چاہیے، اور اس لحاظ سے یہ اچھی بات ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایجنڈا آئٹمز ہیں، اسپیشلی جو اکنامک کوآپریشن ہے، جو سینکشنز کی وجہ سے، امریکہ کی سینکشنز کی وجہ سے نہیں چل رہی ہیں، اس کے کوئی راستے نکالنے چاہیے۔ بارڈر مارکیٹ سے ایک بار یہ پہلے بھی ایرانی صدر کے ساتھ گئے تھے، پچھلے صدر کے ساتھ، اور جا کے اوپن کی تھی، اس کو ذرا بڑھایا جائے، اور بھی طریقے کا ڈھونڈنے چاہیے۔ ایران بہت ایک پرانا پاکستان کا حمایتی ملک ہے، اس کو کلٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ دورہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ناظرین، یہ تھے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔